السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ نامپلی آتشزدگی حادثے کے دوران ہندو مسلم اتحاد کی مثال، اکھیل اور پرنیت کو بچانے کی کوشش میں امتیاز اور حبیب جاں بحق۔ نامپلی آتشزدگی حادثے میں مہلوکین کی تعداد 5 ہو گئی، ریسکیو آپریشن جاری، نعشیں پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل منتقل۔ متاثرہ فرنیچر کی دکان کے روبرو جذباتی مناظر، دکان میں پھنسے افراد کے اہل خانہ کا روتے ہوئے برا حال، مجلسی قائدین ریسکیو آپریشن تک مقام حادثے پر موجود۔ رات بھر جاری رہا ریسکیو آپریشن، محکمہ فائر بریگیڈ کے ڈی جی کا بیان، عمارت کے بیسمنٹ کا استعمال صرف پارکنگ کے لیے ہونا چاہیے، دیگر کاموں کے لیے استعمال کرنا قواعد کی خلاف ورزی۔ تلنگانہ بلدی انتخابات کی تیاری، بلدیات اور کارپوریشن میں بی آر ایس کے انچارج کا تقرر، کے ٹی آر عنقریب فہرست کریں گے جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد کے نامپلی میں فرنیچر کے گودام میں پیش آئے زبردست آگ واقعے میں 5 افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے اہلکار نے کہا ہے کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اب تک 3 لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے، جنہیں پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ عمارت سے اب بھی شدید دھواں اٹھ رہا ہے، خدشہ ہے کہ مجموعی طور پر 5 افراد عمارت میں پھنسے ہوئے تھے۔ واضح ہے کہ نامپلی کے فرنیچر گودام میں حادثاتی طور پر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ واقعہ 4 منزلہ عمارت کے گراؤنڈ فلور میں پیش آیا۔ آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کے عملے نے سخت جدوجہد کی۔ مقام واقعے پر بھاری کرینیں بھی پہنچ گئی تھیں۔ آگ واقعے کے بعد حکام نے متاثرہ عمارت کے اطرافی عمارتوں کو بھی خالی کروا دیا تھا۔ عمارت میں روبوٹ بھی بھیجا گیا تھا تاکہ فائر فائٹرز امدادی کارروائیاں انجام دے سکیں۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر بی سی سجنار نے بھی جائے حادثے کا دورہ کیا اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی۔ ادھر جاؤ، وہ آگے رکھو، نہیں گرم ہیٹ ہو رہا زیادہ ہے۔ میں جب سے یہاں لگ رہا تھا میں چھوڑ دے کے چلے، پورا فرنیچر کو لگ گیا اوپر، اس میں بلڈنگ کے اندر سے اندر گھسا پبلک ہے اس میں کیا آئے گی، وہ بچے ہے۔ ایک منٹ అందుకే కొద్దిగా ముందుకెళ్ళు, ఆయన వస్తాడు రెండు فیضل نکل جا رہا ہوں، رحیم 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 نکل جا رہا ہوں، رحیم نکل جا رہا ہوں، رحیم نکل رحیم نکل جا رہا ہے، ادھر لا بند، چل ویری گڈ ویری گڈ، ادھر رحیم چل ہٹو 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 ہٹو۔ حیدرآباد کے علاقے نامپلی میں پیش آنے والے المناک آتشزدگی کے واقعے نے جہاں شہر کو غم میں ڈبو دیا، وہیں انسانیت کی ایک ایسی مثال بھی سامنے آئی جس نے نفرت اور اشتعال کے ماحول میں امید کی شمع روشن کر دی۔ ایک طرف شہر کے بعض حصوں میں اشتعال انگیز نعروں کا شور تھا تو دوسری جانب نامپلی میں آگ کے شعلوں کے بیچ 2 مسلم نوجوانوں نے اپنی جان قربان کر کے انسانیت کو زندہ ثابت کر دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ نامپلی اسٹیشن روڈ پر واقع ایک 5 منزلہ عمارت میں پیش آیا، جہاں ایک فرنیچر کی دکان میں اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی۔ اس حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دکان میں تقریباً 22 افراد کام کرتے تھے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے زہریلا دھواں پوری عمارت میں پھیل گیا اور لوگ جان بچانے کے لیے باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ اس عمارت کے سیلر میں واچ مین یادیا اپنی اہلیہ لکشمی اور 2 بچوں پرنیت اور اکھل کے ساتھ رہتا تھا۔
ہفتے کے روز دونوں بچے اسکول نہیں گئے تھے اور سیلر میں ہی موجود تھے۔ والدین نے بچوں سے کہا تھا کہ وہ کہیں کھیلتے رہیں اور خود کام پر چلے گئے۔ دوپہر کے وقت اچانک عمارت کے دونوں سیلروں میں آگ لگ گئی اور دھوئیں نے اندر پھنسے افراد کے لیے سانس لینا بھی مشکل بنا دیا۔ اسی دوران دکان میں کام کرنے والے محمد امتیاز اور سید حبیب کو معلوم ہوا کہ واچ مین کے بچے اور ایک خاتون سیلر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بغیر کسی لمحے کی تاخیر کے دونوں نوجوانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ اور دھوئیں سے بھری اس عمارت میں داخل ہو کر انہیں بچانے کی کوشش کی، تاہم شدید دھوئیں اور آگ کی لپیٹ کے باعث وہ واپس باہر نہ آ سکے اور اپنی جان قربان کر دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت نے مذہب، ذات اور شناخت کی تمام دیواروں کو توڑ دیا۔ اگر محمد امتیاز اور سید حبیب آگ میں داخل نہ بھی ہوتے تو کوئی ان سے سوال نہ کرتا، مگر ان کی انسانیت نے انہیں یہ گوارا نہیں کیا۔ وہ ایک خاندان کے بچوں اور ایک خاتون کی موت کے منہ سے چھوڑ کر باہر کھڑے رہے۔ متاثرہ فرنیچر کی دکان کے روبرو جذباتی مناظر بھی دیکھے گئے۔ مذکورہ خاندان کے اہل خانہ بھی دکان کے روبرو زار و خطار ہوتے ہوئے دیکھے گئے، جو دکان کے اندر پھنسے رہ گئے تھے۔ فرنیچر کی دکان میں پھنسے افراد میں دکان ملازم نوجوان امتیاز بھی شامل ہے۔ اس کے والدین دکان پر روتے ہوئے بھی دیکھے گئے، جبکہ انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا 10-12 سال سے یہاں کام کر رہا ہے اور اب وہ اندر پھنسا ہوا ہے۔ صاحب ایمرجنسی صاحب بلائے صاحب، بہت زیادہ ادھر نہیں ادھر بات کر یہاں نہیں ہے صاحب، ایمرجنسی صاحب بلائے۔ واضح ہے کہ اس فرنیچر کے گودام میں کل لگنے والی آگ کے بعد فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیموں کی کارروائیاں اب بھی جاری ہیں۔ آج صبح بھی فائر بریگیڈ عملہ، ایمبولینس اور پولیس اہلکاروں کو سرگرم دیکھا گیا۔ اس سے پہلے ریسکیو ٹیموں نے نامپلی کے اسی فرنیچر شو روم سے ایک شخص کو بحفاظت نکال لیا تھا۔ حیدرآباد کے نامپلی میں واقع ایک فرنیچر شاپ میں ہفتے کے روز پیش آنے والے ہولناک آتشزدگی میں عمارت کے اندر پھنسے 6 افراد میں سے 5 کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ لگاتار 22 گھنٹوں سے زائد جاری ریسکیو آپریشن کے بعد اتوار کی صبح حکام نے 5 لاشیں برآمد کر لی۔ آگ کی لپیٹ میں آ کر مرنے والے 5 افراد کی نعشوں کی شناخت کر لی گئی ہے اور انہیں عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مہلوکین میں 7 سالہ اکھیل، 11 سالہ پرنیت، 35 سالہ حبیب، 32 سالہ امتیاز اور 43 سالہ بیبی شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ عمارت کے واچ مین بیبی اور اس کے 2 بچوں کو بچانے کی کوشش میں امتیاز اور حبیب آگ میں پھنس گئے۔ اطلاع ملتے ہی صدر مجلس کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ اور مجلسی لیڈران بھی مقام واقع پر پہنچ گئے تھے۔ مجلسی لیڈران اور کارکنان نے مقام واقع پر عوام کو سنبھالا، جبکہ ریسکیو آپریشن میں بھی شخصی طور پر حصہ لیتے ہوئے حکام کی مدد کی گئی۔
స్టార్ట్ చేయండి. వాస్తు స్టార్ట్ చేయండి. కొంచెం ముందుకు రండి. ముందుకు రెడీ. अभी एक डेड बॉडी जो लेडीज़ की थी उसको अंदर सेलर में से निकाला गया और मुसलसल कल जो ये हादसा हुआ 2 बजे से लेके अब तक सदर मोहतरम पूरे डिपार्टमेंट के टच में है और यहाँ पर जो फायर का अमला जो काम कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, GHMC कर रहा है और वाटर वर्क्स वाले पूरों से सदर मोहतरम आला अहदेदारों से बात कर रहे हैं और जो आग को काबू में लाया गया, जो ये पूरा जो गोदाम था और ये पूरा फर्नीचर का शोरूम था, इससे और भी बड़ा हादसा हो सकता था। तकरीबन फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में से हम लोग आए बाद सदर मोहतरम की हिदायत पे 40 जनों को बाहर निकाले, नहीं तो वो लोग भी आग की लपेट में आ सकते थे। मगर जिस दिन से कल से जो ये हादसा हुआ है, सदर मोहतरम पूरा टच में है। यहाँ आप एम्बुलेंस में बैठ के गए, कितने बॉडी डेड बॉडी? एक लेडीज़ की डेड बॉडी थी, उसको लेके जाके उस्मानिया में अभी हम मार्चरी में पहुंचा कर आया हूँ। क्या वो मोहतरमा की शिनाख्त हुई? हाँ, अभी वो कर रहे हैं पुलिस वाले। आपके अंदाजे से अभी डेड बॉडी अंदर कितने होंगे? अभी अपन बोल नहीं सकते, अभी काम चल रहा है अंदर। पहले जैसा कि अब सेलर में जाते कि 1-2 कदम के फासले पे ये डेड बॉडी थी। आग लगने की वजह क्या है? अभी वो फायर वाले और डिपार्टमेंट वाले बताएंगे आपको। अभी आप एम्बुलेंस में बैठ के गए, कितने डेड बॉडी रखी, उसके आ गया है? अभी एक डेड बॉडी जो लेडीज़ की थी उसको अंदर सेलर में से निकाला गया और मुसलसल कल जो ये हादसा हुआ 2 बजे से लेके अब तक सदर मोहतरम पूरे डिपार्टमेंट के टच में है और यहाँ पर जो फायर का अमला जो काम कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, GHMC कर रहा है और वाटर वर्क्स वाले पूरों से सदर मोहतरम आला अहदेदारों से बात कर रहे हैं और जो आग को काबू में लाया गया, जो ये पूरा जो गोदाम था और ये पूरा फर्नीचर का शोरूम था, इससे और भी बड़ा हादसा हो सकता था। तकरीबन फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में से हम लोग आए बाद सदर मोहतरम की हिदायत पे 40 जनों को बाहर निकाले, नहीं तो वो लोग भी आग की लपेट में आ सकते थे। मगर जिस दिन से कल से जो ये हादसा हुआ है, सदर मोहतरम पूरा टच में है। यहाँ आप एम्बुलेंस में बैठ के गए, कितने बॉडी डेड बॉडी? एक लेडीज़ की डेड बॉडी थी, उसको लेके जाके उस्मानिया में अभी हम मार्चरी में पहुंचा कर आया हूँ। नामपल्ली फर्नीचर शॉप में पेश आए वाक़े पर हकाम ने मीडिया से बात की है। फायर ब्रिगेड के DG विक्रम सिंह मान ने कहा है कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। आग पर काबू पाने के बाद रेस्क्यू अमले के अफराद मुतासिर इमारत में दाखिल हुए। आज सुबह 9:15 पर पहली लाश बरामद की गई। उसके कुछ ही देर बाद 5 लाशें भी बरामद कर ली गई। लाशों के पोस्टमार्टम के लिए लाशों को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक 5 अफराद लापता थे। उन्होंने कहा है कि अभी ये कहना मुश्किल है कि आग वाक़े की वजह क्या बनी।
शॉर्ट सर्किट या सिगरेट बट के बायस भी आग लग सकती है, लेकिन उन्होंने वादे किया कि 20 मिनट का इस्तेमाल सिर्फ पार्किंग के लिए किया जा सकता है। 20 मिनट का दीगर कामों के लिए इस्तेमाल करना क़वायद की खिलाफ वर्जी है। సాయంత్రం ప్రకారం మిస్సింగ్ అయ్యి వాళ్ళ కోసం రాత్రి అంతా టీమ్స్ గ్రౌండ్ దగ్గర అట్లా పని చేశారు. తెల్లారి ఈ మంటలు కంట్రోల్ అయిన తర్వాత మా టీమ్స్ లోపలికి దిగారు. దిగిన తర్వాత మన మొదటి బాడీ నన్ను పంపించామండి. అయితే మనకు చెప్పిన ప్రకారం మనకు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం 5 ఉన్నవారు. ఆ 5 బాడీస్ని మనం రిట్రీట్ చేసి ఇప్పుడు ఉస్మానియాకి పంపించాము. ఇంకా ఇప్పుడు నేను ఇమీడియట్గా డీటెయిల్స్ గురించి చెప్పలేను, ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మా టీమ్స్, మా సిబ్బంది, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ మనం ఓన్లీ ఈ మంటలు కంట్రోల్ చేయటం, బాడీస్ ఐడెంటిఫై చేయడం, రిట్రీట్లు బిజీ అయిపోయాను. ఇట్ కుడ్ బి అ షార్ట్ సర్క్యూట్, ఇట్ కుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ సిగరెట్ ఆర్ బట్ సంథింగ్, ఇట్ కుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోవ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాము ఇది బేస్మెంట్ అండి. బేస్మెంట్ ఉద్దేశం ఒక్కటే ఉంటుంది, బేస్మెంట్ ఈజ్ మెంట్ ఓన్లీ ఫర్ పార్కింగ్. బేస్మెంట్కి వేరే ఉపయోగం పడటానికి లేదండి. దిస్ ఈస్ అ క్లియర్ గ్రాస్ వయలేషన్ ఆఫ్ ద గైడ్ లైన్స్. ఇట్స్ అ టోటలీ ఇల్లీగల్ యాక్ట్ ఫర్ విచ్ ప్రాసిక్యూషన్ విల్ బి లాంచ్డ్ అగేన్స్ట్ దెమ్. అయితే బేస్మెంట్లో ఈ సామాన్ పెట్టకుండా, ఫర్నిచర్ పెట్టకుండా చాలా డేంజరస్ ఫ్లేమబుల్ కెమికల్స్, ఈ రెగ్జిన్, ఈ మ్యాట్రసెస్ అన్నీ పెట్టుకున్నారు. దాని వల్లనే మనం ఇక్కడ పెట్టినంత బెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ పెట్టినా కూడా మనకు కంట్రోల్ చేయడానికి ఇంత కొద్దిగా టైం పడింది, కానీ మా వాళ్ళు మొత్తం కంట్రోల్ చేయగలిగారు. సో వాళ్ళు ఈ సామాన్ పెట్టకుండా అక్కడ వాచ్మెన్ లాంటి ఒక ఫ్యామిలీ, ఒక లేడీ, పిల్లల్ని కూడా అక్కడ అకామిడేషన్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు అక్కడ आग वाक़े की इत्तला के बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के हक्काम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुकाम वाक़े पर पहुंच गए थे। आग वाक़े के बाद मुतासरा इमारत की मजबूती पर भी संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ से मुसलसिल शोले भड़कते रहे, जबकि अब तक शदीद धुआं और गर्मी महसूस की जा रही है, जिसके बायस 4 मंजिला इमारत की पायदारी पर शुबात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसी तनाजुर में JNTU की इंजीनियरिंग टीम मौके पर पहुंच चुकी है। इस बीच इमारत में सूरत हाल के जायज़े के लिए भी रोबोट का भी इस्तेमाल किया गया था। सिकंदराबाद के अलवाल में वाक़ लड़कियों के हॉस्टल में आज सुबह के अव्वल सातों में आग लगने का वाक़या पेश आया। ये आग लगने का वाक़या इमारत की 5वीं मंजिल पर वाक़ कमरे में पेश आया था, जिससे हॉस्टल में मौजूद तलबा में खौफ हिरास फैल गया। शदीद धुएं के फैल जाने पर कुछ तलबा बीमार पड़ गए। उन्हें आँखों में जलन और सांस लेने में मुश्किलात पेश आईं। वाज़ेह है कि अलवाल की सिटीज़न कॉलोनी वाक़ 9 एजुकेशनल हॉस्टल में ये आग का वाक़या पेश आया था। बताया जाता है कि आग की वजह 4थी मंजिल पर वाक़ AC में धमाका हुआ था। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला और पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। मुतासरा तलबा को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 4 एम्बुलेंस और फायर इंजन ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। BRS लीडर हरीश राव ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के बयान पर तनक़ीद की है। हरीश राव ने आज की प्रेस मीटिंग में कहा कि भट्टी विक्रमार्का ने कहा था कि 2018 में ही साइट विज़िट सर्टिफिकेट की तजवीज़ दी गई थी। सिलसिले में एक दस्तावेज़ भी जारी की गई, लेकिन भट्टी विक्रमार्का ने ये नहीं बताया कि किस काम के लिए साइट विज़िट सर्टिफिकेट की सिफारिश की गई थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सत्र पढ़कर सुनाया, जबकि इसका अगला सत्र नहीं पढ़ा गया। భట్టి గారు నిన్న మాట్లాడుతూ 2018లోనే సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ ప్రతిపాదన ఉందని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఇక్కడే అత్యంత కీలకమైన మౌలిక ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. ఆ సిఫార్సు అసలు ఎటువంటి పనుల కోసం? ఇప్పుడు ఇదే కదా CMPDI సిఫార్సులు ఇచ్చింది అని భట్టి గారు బయటపెట్టిన డాక్యుమెంట్ ఇది. ఇట్స్ నాట్ మై డాక్యుమెంట్. ఇందులో సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్
ఎటువంటి పనుల కోసం పెట్టాలని వీళ్ళు సిఫార్సు చేశారు. అది కోల్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్ కోసమా, కోల్ ఎవాక్యుయేషన్ సిస్టమ్ కోసమా, స్క్రీనింగ్ లేదా వాషింగ్ ప్లాంట్ కోసమా, లేదు ఓబీ వర్క్స్ నిజంగానే ఓవర్ బర్డెన్ రిమూవల్ కోసమా అనేది బయట పెట్టలే బట్టి గారు. జస్ట్ చదువుకుంటూ పోయింటారు. నేను కూడా చదివి వినిపిస్తాను ఇంట్లో నుంచి కొన్ని పాయింట్లు ఆయనదే. అయితే ఆయన ఒక లైన్ చదువుతాడు, ఒక లైన్ ఇడిచిపెడతాడు అంతే. हैदराबाद में कांग्रेस ने मनरेगा स्कीम को कमज़ोर करने की कोशिशों के खिलाफ मनरेगा बचाओ संग्राम यात्रा निकाली। इस एहतजाजी प्रोग्राम में हज़ारों अफराद ने शिरकत करके मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी का इजहार किया। रैली सेक्रेटेरिएट के सामने वाक़े राजीव गांधी के मुजस्समे से शुरू होकर इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर इख्तिताम को पहुंची। कांग्रेस कायदीन ने ज़ोर दिया कि गरीब आवाम के आइनी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और रोज़गार की ज़मानत फराहम करने वाली इस स्कीम को किसी भी सूरत में कमज़ोर ना किया जाए। इस प्रोग्राम में AICC सेक्रेटरी व इंचार्ज सचिन सावंत, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव और दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। हैदराबाद के चंपापेट डिवीज़न के बीजेपी कॉरपोरेटर व बीजेपी रुकन आमिला वी मधुसूदन रेड्डी चल बसे। वो कुछ अरसे से अलील थे और नानक रामगुड़े के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। उनकी मौत की इत्तला पर मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने अस्पताल पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया और उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। उन्होंने पार्टी के लिए उनकी खिदमात को भी याद किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी ने दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन के उर्स तक़ारीब के सिलसिले में मुख्तलिफ़ महकमों के साथ जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन की उर्स तक़ारीब 5 फरवरी से 11 फरवरी तक मुनक़्क़िद होंगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर GHMC जलपल्ली सर्कल के अलावा दीगर महकमों के ओहदेदार और काउंसलर्स भी मौजूद थे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और हमारे MLC रहमत बेग साहब की निगरानी में और हमारे दरगाह कमेटी बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सहरवद्दी साहब के जो उर्स के जो 760 साल जो पूरे मुकम्मल हो चुके हैं, इसके उर्स के ताल्लुक़ से यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। जो इंतज़ामात जो बल्दी बरक़ी आफरास्तानी के लिए तकरीबन एक महीने से यहाँ पर काम चल रहे थे, उसके ताल्लुक़ से आज यहाँ पर पूरी रिव्यू मीटिंग करी गई, जिसमें बल्दिया की जानिब से 32 लाख रुपये और वाटर वर्क्स की तरफ से तकरीबन 22 लाख रुपये और इलेक्ट्रिसिटी की जानिब से मोबाइल ट्रांसफार्मर और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और 7 दिन के उर्स के लिए यहाँ पर एक कैंप लगा जाएंगे और वाटर वर्क्स के भी पानी यहाँ पर सहूलियत दी जाएंगी। हम तकरीबन इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा उर्स शरीफ को बनाने के लिए और उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर इंतज़ाम करें। मैं सबका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्दिया का और हमारे वाटर वर्क्स का और हमारे इलेक्ट्रिक का और हमारे तमाम जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे दरगाह कमेटी की जानिब से भी इंशाअल्लाह। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज हल्के के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना कर रहे हैं और ओहदेदारों से मज़कूरा कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने तालाब चिंचलम डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों, जिनमें 8 लाख रुपये लागती CC रोड के काम भी शामिल हैं, मज़कूरा कामों का तफसीली मुआयना किया और ओहदेदारों से कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान, इब्तिदाई सदर व मोतमदीन के अलावा कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना भी मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी
तालाब चिंचलम सफील के बाजू में नशेमन नगर पे एक कम्युनिटी हॉल तामीर हुआ, उसका मायना किया गया। उसके साथ साथ बाजू में सफील के बाजू रोड जो है वो पूरा सफील तक नहीं थी, तो उसको करीब 5 से 10 फीट का जो रोड का हिस्सा है वो रोड का काम शुरू हुआ। उसके अलावा सामने गली के अंदर एक रोड सीसी रोड मुकम्मल हुई, उसका भी मायना किया गया जिसकी लागत 8 लाख रुपए है। और ये काम का तो ऑलरेडी पहले से ही हम बता चुके थे। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार, चाहे वो सदर मोतमदीन हो, एक्टिव वर्कर हो और बस्ती वाले सारे के सारे मौजूद हैं। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर और इंशाअल्लाह ताला याकूतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आने वाले टाइम के अंदर कामों के अंदर एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत ने नामपल्ली आतिज़दगी हादसे के महलूकीन के फुरसा को फी कस 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया है। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने इस हादसे में अपने गहरे रंज का इजहार किया और एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। पहाड़ी शरीफ के कांग्रेस कायद अब्दुल्ला बिन अवध ने एक मरतबा फिर सरगर्म सियासत में हिस्सा लेने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो इलेक्शंस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तवक्को की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा बल्दी इंतखाबात में उन्हें टिकट देगी। GHMC इलेक्शन में इंशाल्लाह अगर पब्लिक की दुआ मेरे साथ रही, पब्लिक का ओपिनियन रहा, हमारे मोहल्ले में बड़े छोटे हमारी गंगा जमुना तहजीब है, सारे मोहल्ले वाले बैठेंगे, अगर उन्होंने कुछ बोले मेरे को तो मैं आगे जो है फिर कदम उठाऊंगा। और पब्लिक ओपिनियन मेरे को ज़रूरी है, मैं उन लोगों की राय मशवरे के बाद ये फैसला लूँगा इंशाल्लाह। कांग्रेस पार्टी से मैं लड़ूंगा। और अब हमारे इंचार्ज फार्मर MLA केलार साहब, काका केलार, काका से ही मशवरा करूंगा। अगर काका भी मेरे खिदमत से वाकिफ़ है और काका भी और हमारे बड़े कांग्रेस के जो भी हमारे नेता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नामपल्ली आतिज़दगी हादसे के दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल अखिल और प्रणीत को बचाने की कोशिश में इम्तियाज और हबीब जाँ बहक। नामपल्ली आतिज़दगी हादसे में महलूकीन की तादाद 5 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, नाशें पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल। मुतासरा फर्नीचर की दुकान के रूबरू जज्बाती मनाजिर, दुकान में फंसे अफराद के अहले खाना का रोते हुए बुरा हाल। मजलिसी कायदीन रेस्क्यू ऑपरेशन तक मुकाम हादसे पर मौजूद। रात भर जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। महकमे फायर ब्रिगेड के DG का बयान, इमारत के बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पार्किंग के लिए होना चाहिए, दीगर कामों के लिए इस्तेमाल करना क़वायद की खिलाफ वर्जी। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात की तैयारी, बल्दियात और कॉरपोरेशन में BRS के इंचार्ज का तकर्रुर, KTR अनक़रीब फहरिस्त करेंगे जारी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।